डीपी एक काफी टफ कंसेप्ट है, बट मैंने आपसे ही सीखा है, आपके ही वीडियोस देख देख। How can you learn DP without recursion, without memoization? द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एंड द सेकंड इज की मतलब अब इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए। वाला जो पर्सपेक्टिव रहेगा बंदा तो फंसेगा नहीं कभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एक एटीट्यूड अगर बंदे को अपने अंदर पैदा करना है तो वो ये कि हमेशा सीखने को तैयार रहो। पे ही है, पहले की तरह नहीं था कि भैया बस 2000 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, अब तो मैं तो इंटरव्यू निकाल दूंगा। अकेला डीए से जॉब नहीं दिलाएगा। So hello guys, welcome back to the channel. The next podcast that I'm bringing is very special. It is one of the people who I really admire and who has actually taught me a lot of things. He is the co-founder of Pep Coding and his name is Sumit Malik. So Sumit Malik. Hi everyone, welcome back to the channel. So today we have a very special guest. So his name is Sumit Malik. I don't think कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। किसी ने भी अगर डीएसए का प्रेप करा होगा तो वो डेफिनेटली सुमित सर को तो जानते ही होंगे, बट स्टिल लाइक सुमित सर जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दो। मैं तो जानता ही हूँ, बाकी सब भी जान जाएंगे। Hi guys. So we had a small channel in the community named Pep Coding, small company also. So we did business from 2018 to 2022, and then we could not do it no more. Had to get acquired. So right now I'm working with Scalar, and you would get to see me if you would check out DSA content. आई वुड से लाइक डीपी एक काफी टफ कंसेप्ट है, बट मैंने आपसे ही सीखा है, आपके ही वीडियोस देख देख के जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग को सीखा हुआ है। DP is one content from Peppudding that has like both kind of audience. Some people like it, some people also do not like it. Some people say that how can you learn DP without recursion, without memoization? So people expect all three in one topic, that they would want recursion, memoization, then tabulation. I directly do tabulation. This is one content that is critically, a lot of people speak about it when they learn the content from Peppudding. बट आई थिंक डीपी का प्रॉब्लम में भी यही है कि मतलब यू नो वन ऑफ द कंसेप्ट यू आर एबल टू क्रैक, दैट्स मोस्टली अबाउट इट। मतलब इतना वो हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि सारे ही कंसेप्ट से आपको आना है। मेन है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना, वो एक ट्रिक है, वो आना चाहिए। Exactly. That was what my idea was. Because when I taught like recursion, so recursion and backtracking, I did like 80 questions on recursion and backtracking on Peppudding's YouTube channel. When I came to DP, I thought that we have done so much recursion that now it is not necessary to keep on doing recursion. So I skipped on recursion, I skipped on memoization, I directly went to tabulation. One more reason was because so these portals, especially HackerRank, if you would solve a DP question correctly on HackerRank via memoization, your solution would not be selected, would not pass it. It would get a Stack Overflow error regardless of you writing the correct memoization, everything correct. But the tabulation solution would pass the test cases, especially on HackerRank. This problem is only for Java specific people. This does not apply to C++ people. I had a specific reason when I did it only via tabulation. Was not by chance actually. HackerRank में ना वो HackerRank में उन्होंने टेस्ट केस ऐसे बनाए हैं कि भाई चाहे आपने टीपी लगाई, करेक्ट टीपी लगाई, मेमोराइजेशन कर रखा है, लेकिन वो स्टैक फ्रेम खत्म हो जाते हैं, तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाता है सब कुछ सही होने पर भी। तो वो पार करने के लिए सी प्लस वालों को नहीं आता, उनका स्टैक फ्रेम 1 लाख का होता है, जावा के अंदर तकरीबन 10,000 फ्रेम के ऊपर गया तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है रिकर्शन के अंदर, तो अपना टैबुलेशन ही पास होता है वहां पर, इसलिए मेरे को टैबुलेशन पे जाना पड़ा था। और फिर एक बार जो बंदे को थोड़ा रिकर्शन समझ में आ गया तो वो समझता है कि टैबुलेशन वाला फॉर्मूला और मेमोरेशन में ज्यादा फर्क है नहीं। तो आज वाला पॉडकास्ट थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर से अलग करते हैं। मतलब द कंसेप्ट, द मेन आइडिया इज टू लाइक बेसिकली डिस्कस कि एज जो कि मतलब लोग इंडस्ट्री में हैं या जो कि आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर तो आपका बहुत सारा है। दिस टाइम लेट्स फोकस ऑन लाइक कि आपका इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या है, कि किस तरफ इंडस्ट्री जा रही है, कैसे आपको मतलब जो है रेलिवेंट रहना है इंडस्ट्री से। बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखा सिचुएशन खराब थी, अब वो थोड़ा मतलब अब गो थ्रू हम कर रहे हैं, बट स्टिल लाइक नाउ लाइक व्हाट आई फील इज कि अब एक वो स्टैग्नेशन वाला पॉइंट खत्म हो गया कि मतलब चलो मुझे तो जो आता है मेरे को आता है, मैं सस्टेन कर लूंगा। अब द इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स कि मतलब अब आपको बेटर बचने चले जाना है। वन इज लाइक द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, एंड द सेकंड इज कि मतलब अब इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए। सो मैं आपसे अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा था कि देखो, लर्निंग वाला जो पर्सपेक्टिव रहेगा बंदा तो फंसेगा नहीं कभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एक एटीट्यूड अगर बंदे को अपने अंदर पैदा करना है तो वो ये कि हमेशा सीखने को तैयार रहो। मतलब डू नॉट बी इन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आई वुड लर्न बिकॉज आई वांट टू मेक अ स्विच टुडे, and now that I made my switch, I want to be living a comfortable life. I would not start learning again. I just want to do my job and then enjoy for the rest of the time. Do not be that person. Be that person कि भाई learning is a way of life for you. You never stop learning, not today, not tomorrow, not ever. So if you would stay that kind of a person, your job would never be like, you would not be looking very scarce on jobs.
Okay, although I refrain from giving advice, I want to stop myself from giving any kind of ज्ञान here. ठीक है, तो if possible even cut this part because I do not want to give advice to people at all. पर मैं जैसे मैं सारी बातों को इस तरह मोड़ के कहता हूँ कि अगर मैं करता तो क्या करता, मैं करता तो भैया मैं हमेशा ना सीखते रहता. सो आपके हिसाब से मतलब अभी ऐसे क्या ट्रेंड्स हैं डेटा स्ट्रक्चर साइड पे या सिस्टम डिजाइन साइड पे, जो भी नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ रहे हैं या जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लाइक दे शुड बी अवेयर ऑफ लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन बोथ ऑफ दीज डोमेन्स राइट नाउ? कुछ समय से क्या हुआ है कि मतलब आई एम नॉट डायरेक्टली टॉकिंग टू पीपल जो पढ़ के इंटरव्यू देकर आ रहे हैं फिर वापस मुझे आके फीडबैक दे रहे हैं. तो मैं सीधा सीधा तो इस फीडबैक लूप में नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सुना है वो सुना सुनाया ऐसा ऐसा है कि अब अकेले डीएस से जॉब क्रैक नहीं हो रही है. डीएस के साथ साथ तुमको थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन, थोड़ा सा प्रोजेक्ट सही क्वालिटी के चाहिए हैं. वो भी ऐसा डमी सा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, डीप इनफ प्रोजेक्ट चाहिए. तो ऐसा सा सुना सुना सा है एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम लाइक फ्रॉम द स्केलर टीम ऑल्सो. तो वहां पर वो काफी सारा इवेलुएट हो रहा है कि किसने क्या पढ़ा, फिर कैसे इंटरव्यू दिया, क्या क्रैक हुआ क्या क्रैक नहीं हुआ. तो इट इज कमिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो अब मैं ऐसा बोलूंगा कि क्योंकि मैं डायरेक्टली फीडबैक लूप का पार्ट नहीं हूँ तो आई माइट नॉट नो. हाँ मतलब ये वाला मैंने भी सुना है बिकॉज लाइक आई एम फ्रेंड ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ स्केलर इंस्ट्रक्टर्स. तो जो वो बताते हैं कि मतलब जो जब जैसे मैं स्टूडेंट था तो जो फोकस था वो मेजरली कंसेप्ट्स पे था. अब आई थिंक उन्होंने काफ़ी अपना मेजर फोकस जो है वो प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों पे कर दिया, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल जिनके पास अभी रिज्यूमे में लिखने के लिए कोई भी लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं है. हाँ तो ये मैंने भी सुना हुआ हाँ है कुछ लोगों हाँ, से. जो जो एक लाइन सुनने को मिली है वही सुनने को मिली है, अकेला डीए से जॉब नहीं दिलाएगा, ये लाइन सुनने को मिला है. और मतलब आपको क्या लगता है मतलब कंसिडरिंग ऑल दीज पैरामीटर्स, सो मतलब इज इट दैट सिर्फ जो एक इंटरव्यू प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है या इन जनरल एक इंडस्ट्री का जो है मतलब वो एक आउटलुक ही चेंज हो रहा है, एंड मतलब इज दिट समथिंग लाइक इज देयर अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन दैट्स हैपनिंग या फिर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है. देख यार, देख वो 2020 ऑनवर्ड्स मतलब अगर तू एक बार वो इंक 42 खोल के देख 2020 और 21 में ना वीसीज ने इतना पैसा बांटा इंडियन मार्केट के अंदर, बहुत पैसा बांटा. तो देयर वर सो मेनी स्टार्टअप्स एंड देयर आर सो मच मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पीपल. अंधा पैसा आ रहा था, अंधा पैसा सैलरीज में बांटना था. दे कुड चूज टू फैंसी एनी विम दैट दे वांटेड टू. उनको लगा कि भैया गूगल और माइक्रोसॉफ्ट डीएसए पे हायर करती है, हम भी डीएसए पे हायर करेंगे. वेदर और नॉट कि तुमको वैसा बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, शायद तुमको ऐसा बंदा चाहिए जो डे वन से तुम्हारे यहाँ पर डेव करे. तो मे बी ओनली डीएसएस वाज नॉट द वे टू गो, बट द मनी वाज चीप. सो यू कुड फैंसी अ फ्यू विम्स. नाउ मनी इज नॉट चीप. 2022-23 आ गया, पैसा चीप नहीं है. 2022 में भी पैसा चीप नहीं था, 23 में तो कतई फंडिंग नहीं उठी है. तो अब एवरीबडी वांट्स टू बी शार्प. मतलब जो बंदा हायर करा है भैया आज से आउटपुट आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं तेरे से 6 महीने बाद आउटपुट दूंगा. पैसा तेरे को आज दूंगा, मेरे को आज से एक तरह से सॉफ्टवेयर पैदा होना चाहिए. So now that people are more accountable, so startup stakeholders in startups, founders, CEOs, and the entire hierarchy now is more accountable in the sense कि पैसा बर्बाद नहीं होने दे सकते. अगला पैसा तभी मिलेगा जब हमने पिछला पैसा बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया होगा. तो नाउ दे वांट टू हायर दोज पीपल हु कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स फ्रॉम डे वन. आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि ये शिफ्ट आ भी रहा है कि अब बंदे को ना सिर्फ डीएस से काम नहीं चलेगा. यार देख ऐसा है, मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, तूने बहुत सारे सवाल सॉल्व करके वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड, बट दिस इज माई प्रोजेक्ट, कैन यू पुल इट ऑफ इन लाइक 1 week or not? If you cannot, then you are very good. Go interview with Google and Microsoft. Do not come to me. And sorry, I forgot the question actually. नहीं तो इसी के अराउंड था कि इंडस्ट्री में क्या चेंज है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलिवेंट चेंज कि मतलब वो अंधा पैसा बटना बंद हो गया है. सो अब जो है मतलब जो काम है उसी पे ही है, पहले की तरह नहीं था कि भैया बस 2000 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए अब तो मैं तो इंटरव्यू निकाल दूंगा. वो वहीं से स्टार्ट हुआ यार. वो वीसी के पास वीसी ने पैसा देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया. तो फिर फाउंडर भी तो पैसा वही देगा ना जो हमारे पास फंडिंग का पैसा आ रहा था. वो पैसा नहीं आ रहा तो हम यहाँ से कहाँ पैसा जाएगा. तो अब आप पेशेंट नहीं रह सकते. अब आपको डे वन को बंदा ऐसा चाहिए तो फोड़ेगा. तो मतलब अब इन चीज़ों को देखते हुए मतलब डू यू थिंक लाइक ऑल दीज आर कनेक्टिंग द डॉट्स टू कीप अपस्किलिंग, कि मतलब दीज आर लाइक प्राइमरी फैक्टर्स जिसकी वजह से लगता है, या आपको लगता है देयर आर स्टिल फैक्टर्स जिसकी वजह से पीपल शुड कीप अपस्किलिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड सो फार? ऑफ कोर्स मतलब यू हैव टू कीप ऑन अपस्किलिंग. पर उसके अंदर ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बोल रहा हूँ कि वो लोगों को ना अब वैसा भी होना पड़ेगा कि मतलब you don't want to be upskilling in spoon fed mode alone. You have to be more of an adult in upskilling. Adult in upskilling means कि you have to like always try and find different ways of upskilling. No, first become aware what is going around and then start to know where I can learn that from.
अडल्ट और चिल्ड्रन में चाइल्ड में फर्क होता है, वो पता है कौन सा फर्क रहता है? चाइल्ड इज वेरी कीन ऑन लर्निंग इन अ स्पेसिफिक वे. आई विल सिट इन अ क्लास, यू विल टेल मी इंस्ट्रक्शंस, आई विल डू दैट इज इंस्ट्रक्शनल मोड कि आई लर्न. Adults do not learn like that. Adults learn by doing. You learn by doing. मैं ये करूंगा और फिर फूटेगा, फिर मैं कुछ और थोड़ा सा पढ़ लूंगा, फिर थोड़ा सा और करूंगा, तो करते करते आ जाएगा. That is another way of learning, and that is, I think, a very superior way of learning. Both sides has pros and cons, but this side has a major pro कि by the time you learn it, you also have a body of work to show for it. Because you are learning via doing. Trick is maybe learning via doing. The trick is being responsible. The trick is being more adult-like. So many of us working in the professional world are still childlike, not adult-like. In the sense, they are responsible in everything. That I'm not speaking about that. In the sense, they are not very responsible about their learning outcomes. So they have to be very responsible about how their learning is going on. And again, I forgot the question. I started speaking about something, and then I नहीं, like it was all about कि मतलब maybe I started in the correct. राइट. तो कोई बात नहीं. आई थिंक द फ्लो इज गुड. जो आप जिसमें आंसर दे रहे हो दैट इज गुड. सो अगर आप क्वेश्चन भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, वो जो आप एक के बाद एक पॉइंट ज्वाइन करते चले जा रहे हो, दैट इन इटसेल्फ इज द आंसर फॉर इट. राइट. आई थिंक लाइक इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल जैक मा ही है. उसने बहुत फेलियर देखे लाइफ में, फिर भी वो स्ट्रगल मारता चला गया. उसके बाद तो उसने लाइफ में सब छोड़ ही दिया. बाद में तो उसने फंडिंग दे के कंपनियां बनवा दी, अपनी तो खड़ी कर ही दी, और पता नहीं कितनी कंपनीज खड़ी करवा दी उसने. सो लाइक ही वाज वन जो उसने बहुत फेलियर देखे, बट इवेंचुअली मतलब बस वो करता ही चला. सो मतलब नाउ दैट यू आर सेइंग दैट द रेलेवेंस ऑफ अपस्किलिंग इज वेरी हाई, सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि आज की डेट में व्हाट ऑल आर द रिसोर्सेज अवेलेबल for learning new skills, and it is like, is it the right time right now? What's happening, for example, like data engineering एक काफी booming सा field बन गया, right? A lot of people are thinking of going into that domain. So do you think कि industry restrictive होती है कि मतलब upskill तो करो but अपने field में करो, या फिर do you think like the industry is welcoming कि बस आप करो, अच्छा करो, अगर आपको लगता है अफोर्ड सकते हो आप आ जाओ? देखो इंडस्ट्री तो बहुत ही, देखो इंडस्ट्री तो वेलकमिंग नहीं है. इंडस्ट्री की तो कोशिश ये रही कि हमारे यहाँ जावा में काम होता है, डॉटनेट वाला बंदा आ रहा है तो उसे रोक दिया जाए. जावास्क्रिप्ट में काम होता है, एक पाइथन वाला बंदा आ जाए तो उसे रोक लिया जाए, उसे ना लिया जाए. या ये बंदा डेटा इंजीनियरिंग में था, अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाहता है, ये बंदा टेस्टिंग में था, ये डेवलपमेंट में आना चाहता है. इंडस्ट्री तो ये चाहिए कि ना मौका दिया जाए. इंडस्ट्री इज लाइक इंडस्ट्री के अंदर ना, मतलब लेट्स से आई एम अ डिसीजन मेकर इन अ कंपनी. लेट्स से कि मैं एचआर फंक्शन में हूँ, क्या मैं इतना डेयर करूंगा कि मैं पॉलिसी बदल दूं? अरे उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा तोड़ू है, ये जावास्क्रिप्ट वालों को भी उठा लो डॉटनेट के लिए, और जावा वालों को भी उठा लो डॉटनेट के लिए. मैं इतना डेयरिंग नहीं करूंगा. क्यों? मैंने कर दिया. लेट्स से कि 2-4 बंदे खराब आ गए, बाद में मेरे को पूछा गया कि तुमने ये पॉलिसी कैसे बना दिया, तुम बड़े बेवकूफ हो यार. सो द स्टेक होल्डर्स इन कंपनीज वुड जनरली नॉट बी दैट डेयरिंग. And why should they be? Actually, these are the doors that have to be broken down by the candidates. You have to produce a body of work so compelling that the interviewer makes a special case for you. If you want special things to happen to you, this is a special thing. Let's say you have been a salesperson all your life and now you want to become a developer. Nobody's going to give you a chance. You have to break down those doors. Maybe you're an HR person or a marketing person and now you want to go into development. So for instance, अंकित, मैं जैसे तेरे से पूछता हूँ, अभी तू गूगल कर रहा है, लेट्स से तेरे को अचानक से ये फैंसी आए कि नहीं यार मुझे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना. हाउ इजी डू यू थिंक इट वुड बी फॉर यू? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना तो कितना वेलकमिंग वुड दे बी सिटिंग विद देयर आर्म्स ओपन कि आओ अंकित हमारी कंपनी में आओ, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओ? वुड दे वांट यू, और वुड यू ट्राई टू चार्ट अ पाथ फॉर योरसेल्फ? जैसे कि मैं ऐसे ही मैं तुझे यहाँ पर ना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं खड़े. ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ. अंकित, अगर तेरे को आज मैं ये कहूँ यार सिकोया में तेरे को जॉब पकड़ना है, सिकोया में और या मैट्रिक्स पार्टनर्स में जॉब पकड़ना है, तो व्हाट डू यू थिंक would, and you cannot do an MBA now that the age is more, you do not have that time left anymore कि तू MBA जाए करे, तो तू क्या कोशिश करेगा कि तू सिकोया मैट्रिक्स पार्टनर्स में जॉब कैसे ढूंढे? तो क्या करेगा? मतलब ये मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज अभी करना चाहता हूँ. तो क्या मतलब सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा ये समझने की कि उस डोमेन में नीड्स क्या है, कि मतलब वहां जाने के लिए मुझे क्या कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, खुद से थोड़ी R&D करूंगा, कुछ ब्लॉग्स पढ़ लिए, कुछ पोस्ट पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे. उसके अलावा सेकंड ठीक इज है. प्रोबब्ली आई विल अप्रोच सम पीपल हु कैन मेंटर मी, कि मैं उनसे समझूंगा कि मुझे क्या करना करेक्ट. चाहिए. तो मैं खुद से तो अपना पार्ट डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए ही रहेगी, राइट? तो मैं अपने लिए कुछ 2-4 अच्छे मेंटर्स ढूंढूंगा जो कि मुझे गाइड करें, मेरे पाथ के जो मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ उसको इवैल्यूएट करें कि मैं सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, कहीं गलती. इस सवाल पे और बात करते हैं. जैसे कि अब जो तेरे मेंटर्स हैं, जो तेरा लिंक्डइन का सर्कल होगा, तेरा ट्विटर का सर्कल होगा, उसमें तो यार डेवलपर ही होंगे मेजरली. तो तू कैसे वो बंदे ढूंढेगा जो तुझे बता सके कि मैट्रिक्स पार्टनर्स में या सिकोया में कैसे जॉब पाएगा? कैसे ढूंढेगा उन बंदों को? वो तो मैं ये वही इसलिए है. करना चाहता हूँ क्योंकि ये सेम जर्नी
कोई डेवलपर भी अपने लिए लगा सकता है, कोई एस्पायरिंग डेवलपर भी अपने लिए एक्टिविटी कर सकता है, कैसे ढूंढे, कैसे कनेक्ट निकाले, तो हाँ बता कैसे ढूंढेगा? मतलब देखो ऑब्वियसली अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया मतलब मेरे लिए हाथ खोल के बैठेगी, नहीं तो मतलब मैं कोई ओबामा का भतीजा तो हूँ नहीं कि मतलब मैं जिसको भी अप्रोच करूंगा डालूंगा, 500 मेल डालूंगा, 800 मेल डालूंगा, डालता चला जाऊंगा, लोगों को अप्रोच करूंगा। मतलब वही है वो, इट्स आई हाँ नो कि वो पाथ मुश्किल है, मुझे करना ही है तो जैसे तैसे करके करूंगा, मतलब एफर्ट मारूंगा, रोज 10 लोगों को मेल डालूंगा, इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्वा की नहीं और भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जेपी मॉर्गन ये वो, इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे हैं सबको मेल डालूंगा, अपनी फैमिली में पता करूंगा, फ्रेंड सर्कल से पता ठीक है। करूंगा, यही तरीका है। मोटा मोटा देख, मेरे को तो रास्ता समझ में आ रहा है। तू पहले कह रहा है कि तू, मैं तो उनका नीड गैप देखूंगा कि ये हाँ, बंदे कैसे, इनको क्या समस्या आती है, उस समस्या को कैसे ठीक करते हैं। फिर राइट। दूसरा, भैया मैं मेंटर ढूंढूंगा। मुझे दोनों बातें एकदम समझ में आ रही है, मैं भी ऐसा करना पसंद करता, और ये किसी भी जॉब के लिए ट्रू है। और तीसरी बात, लेट्स से तेरे को मेंटर मिल गए और उन्होंने तेरे को कुछ रिसोर्सेज गाइड कर दिए या रिसोर्सेज गाइड नहीं किए, तो अब तेरे को रिसोर्सेज ढूंढने हैं, तो वो रिसोर्सेज कैसे ढूंढेगा? मतलब जस्ट ऑफ द बैट जो भी तेरे को सूझे बता कि तू कैसे ढूंढेगा वो रिसोर्सेज? मतलब उसके बाद तो फिर बस R&D है, कि मतलब अगर कहाँ? मान लो मैंने ढूंढ लिया, मेरे को 10 बंदे मिल भी गए, ठीक है, मैंने 1 साल लगा दिया और 10 बंदे मिले, उन्होंने भी कुछ अप्रोच किया, नहीं बताया, इसके बाद तो फिर वही है वो ट्रेडिशनल वे कि देखो कि ये करिकुलम के अंदर जो होता था इसमें क्या होता था, ये जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में है उसमें से कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज निकालो, उसके अंदर उन टर्मिनोलॉजीज को फर्दर एक्सप्लोर करो, देखो कि वो कौन से कंसेप्ट में कवर हो रहे हैं, फिर उन कंसेप्ट में घुसना। से फॉर एग्जांपल से वो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कुछ 10 एल्गोरिथम यूज करते हैं, उन एल्गोरिथम्स को देखना, फिर मतलब वो वही है, वो एक चेन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी मुझे खुद से, वो एफर्ट फिर मुझे ही मारना है अगर मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही कहीं से तो। Now going back to our old question, the question where everything started, what do you think would the industry, what do you think, now you are a developer and you have been coding for so long, what do you think the VC industry would be welcoming you, would be waiting for you with open hands, or what would their attitude be? मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब इट्स लाइक मिलियंस Would- स्ट्रगल ही है वहाँ एंटर करना, मतलब प्रॉब्ली हाँ। so actually, do you already feel that you will have to break down the doors? Nobody is waiting for Ankit कि आओ आओ आप हमारा ही उद्धार करोगे. Nobody is waiting for us. Nobody is waiting for no one. You have to break down the doors. कोई किसी को नहीं कुछ करने वाला. खुद ही जाके you have to enter that there with the force of your being. मोर सो मतलब व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे मतलब 100 करोड़ से ज्यादा तो आबादी हो रखी है, मतलब भरे पड़े हैं लोग, हर डोमेन में भरे, मतलब ऑफ आपको कोर्स, रात और दिन कुछ नहीं टैलेंट, मिलता। इतना टैलेंट भाई, इतना टैलेंट, मतलब ऐसा है कि हमने को ना, हमें बढ़िया ये है, घमंड नहीं हो सकता, घमंड होना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें लगा कि मैं इस चीज में बहुत फोड़ू था, फिर तुम जाओगे, तुम उसी फील्ड में, अरे यार इस फील्ड में मुझसे ज्यादा ऊपर लोग सारे लोग हैं, मुझे तो लगता था कि मैं कम से कम इस एक फील्ड में बहुत तोड़ू हूँ मैं तो, लेकिन आंखें खुल गई, मैं तो इस फील्ड में भी तोड़ू नहीं हूँ। बट मतलब मैंने इस इंडस्ट्री में ना एक रियलाइज किया कि ठीक है, या तो आप देखो बेस्ट बन जाओ, ठीक है, अगर आप बेस्ट नहीं बन सकते तो जो बेस्ट है उनसे सीखते चले जाओ, तो मैंने तो वो सेकंड वाला पाथ ले लिया, मैं तो मानता हूँ कि हाँ मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी बेस्ट है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनसे सीख रहा हाँ, हूँ, देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सू हो गया, अरे, और अच्छे अच्छे जितने भी लोग हैं डोमेन्स में, आई नो कि हाँ ये मुझसे बेटर है मतलब इनको। अंकित, इसमें ना एक अमेजिंग सी बात है, इसमें थोड़ी सी ना फिलोसफी, थोड़ी सी साइकोलॉजी दोनों जुड़ी हुई है। मतलब पता है क्या है, मतलब जैसे ईगो है ना, ईगो है, और हर बंदे में होती है, बहुत भर के ईगो होती है, और ईगो ना डज नॉट लेट यू मेक स्मार्ट डिसीजंस। नंबर वन, ईगो डज नॉट लेट यू मेक स्मार्ट डिसीजंस। नंबर टू, ईगो डज नॉट लेट यू लर्न। क्यों क्यों नहीं सीखने देती ईगो? तेरे से सीखूंगा यार, मैंने बहुत करा हुआ काम, मैंने बहुत काम करा, मैंने जिंदगी बहुत सीख, पर तेरे से तो नहीं सीखूंगा। दिस एटीट्यूड डू नॉट लेट यू लर्न, दिस इज ईगो। फिर दूसरा ये वाला एटीट्यूड कि भाई मेरे को दुनिया को प्रूव करना है, ये करना है, वो करना है, तो दैट वुड मेक यू डू एक्टिविटीज दैट आर नॉट रियली रेलेवेंट विद योर लाइफ गोल्स, जो तेरे को जिंदगी में अचीव करना था और जो तेरा सही पाथ होना चाहिए था, पर तू किस कुछ चीजें इसलिए कर रहा है जिस बिकॉज यू हैव टू प्रूव टू समबडी, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट वुड नॉट ऐड मच वैल्यू टू यू। जैसे अभी तू, जैसे मैं तेरे को अंकित, तेरे को अभी बात करूं कि तू अभी गूगल में, अभी मैं तेरे को अचानक से तेरे को ईगो सूझ जाए, ये ईगो गोल बन जाए तेरा एक, मुझे यार कोड फोर्सेस के ऊपर ना, और मुझे ऐसे 2400 रेटिंग पॉइंट, 2600 रेटिंग पॉइंट स्कोर करना है, ये एक लाइफ गोल हो सकता है। दूसरा लाइफ गोल है कि यार मैं जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें मैं मेहनत करके यूट्यूब चैनल चलाऊंगा। अगर तेरे को पहले वाला ईगो गोल सूझ जाए, तो वुड दैट मेक योर लाइफ मोर फुलफिलिंग? दोनों में टाइम लगने वाला है, दोनों ही तू परसिवियर करेगा तो दोनों ही हो जाएंगे, तो वुड दैट बी अ बेटर यूज ऑफ टाइम, और वुड दिस बी अ बेटर यूज ऑफ टाइम? जस्ट अ क्वेश्चन। दोनों के अंदर एक्चुअली वही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, दोनों के अपने प्रोसेस, तो मतलब मतलब पर मैं मैं बता क्या कहना चाहता हूँ, आपका लाइफ गोल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उठाना नहीं है कि यार नहीं मैं नहीं इसलिए, मैं तो वो करूंगा, कोड फोर्स इसलिए फोड़ूंगा क्योंकि सब लोगों से नहीं होता है।
that would be very stupid way of living. मतलब ठीक है, मतलब कुछ लोगों को एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना एक वो होता है, मतलब एक नशा सा होता है, उससे खुशी मिलती है कुछ लोगों को। ठीक है, मतलब देखो हर बंदे के पास अपने स्ट्रेस है, वो अपने ऑफिस का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, अगर किसी को उस चीज में खुशी मिल रही है तो बढ़िया है, वो परस्यू करे, पर राइट। फिर वो उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारे कारण अच्छे होने चाहिए। वो अगर आपका कारण है तो बढ़िया है, लेकिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझ में टैलेंट है, इसके लिए तुम कोड फोर्सेस करो, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया। तो तुम ऐसा compete मत करो, मतलब जो नेगेटिव्स को छोड़ो, देयर इज इनफ जॉय टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्रिएटिंग स्टफ। इट इज लाइक कि हाँ मतलब ठीक है, उस एम से आप कर रहे हो तो बेटर है।